So today's topic is otosclerosis. Any idea about this term? So we can split this word otosclerosis. Sclerosis is hardening, calcification. So something related to calcification inside the ear, specifically middle and inner ear. So this is the disease that affects the middle and the inner ear. Okay. So also called as hardening of the ear, and it results from formation of abnormal bone growth along the stapes, the innermost ossicle, okay, in the middle ear. With the new bone growth, the stapes becomes immobile and it prevents the transmission of sound in the inner ear, leading to conductive hearing loss. So otosclerosis affects both the ears. Okay. So the idea of this topic being taken today is, once you leave from here, you should know something about it. Everything is there in the books, you can study anytime, but why we are taking the class? To develop interest in the subject. इसलिए pay good attention. So this is the tympanic membrane, this is the inner ear. This part lies in the which ear? Middle ear, the ossicular chain. So this disease, otosclerosis, affects precisely the middle and inner ear junction. All right, this part, the stapes foot plate. So even if the sound travels through the external auditory canal and vibrates the ossicular chain, this vibration is not able to be transmitted in the inner ear. Why? Because some sort of calcification is happening in the stapes foot plate. That leads to what type of hearing loss? There are two types of hearing loss. One is conductive, that is in the conductive mechanism. So this is the conductive mechanism, this tympanic membrane, ossicular chain and all. So it leads to conductive type of hearing loss predominantly. It can also lead to sensory neural or mixed type of hearing loss, but predominantly it causes conductive type of hearing loss. Why? Due to fixation of this area, the stapes foot plate area. This is a very important topic. You will be asked some question either in the MCQ or in the Viva, anywhere you can be asked this topic. घूम फिर के इस पे आप आ जाओगे, ठीक है? So what is the classification? So there are two types. One is the histological otosclerosis and another is the clinical otosclerosis. So like the name suggests, in histological otosclerosis, there are no symptoms to the patient. We are finding the disease in histopathology. All right. And in the clinical otosclerosis, they are further subclassified into these three types: the stapedial, cochlear, or mixed otosclerosis. Like I said, if the disease is limited to the stapes foot plate area, so that will come under what type of otosclerosis? Stapedial type. If it is involving the inner ear, part of the inner ear, then it can cause cochlear type. And suppose it is involving both the things, then it can cause mixed type. As simple as that. Okay. So just a brief idea exactly where this disease is happening. Okay. So like you know, the inner ear has a membranous part, has a bony part. Membranous part inside the bony vestibule. All right. इतना clear है? So अब जो bony otic capsule है, during the period of development, it has three layers. The bony part, outer जो casing है. One, the innermost layer is called as the end ostial layer. Middle part is the end chondral layer, and the outer part is the periosteal layer.
So like the name suggests, enchondral layer मतलब that layer of the bony vestibule that develops from cartilage during the time of development. It is said that there are 14 ossification centers from where that cartilage ossifies. ठीक है. अब उस पूरे cartilage में if there are some nidus, some places where the calcification doesn't take place properly, that later on in life can result in this disease causing bone deposition at those places. Understood? Bony जो vestibule है पूरा inner ear का जो casing है that has 3 layers, उसका जो middle layer है that is called as the enchondral layer. That is made up of cartilage in the beginning at the time of development. That ossifies via 14 ossification centers. अगर उस एरिया में कुछ cartilage के nidus if they are present, that results into this disease. Okay, so this doesn't happen very commonly, but if it results, then the result is otosclerosis. All right. So now coming on to the classification, stapedial otosclerosis. The otosclerosis focus may produce ankylosis of the membranous labyrinth. Cochlear otosclerosis, the otosclerotic process proceeds up to the membranous labyrinth producing sensory neural deafness, क्योंकि inner ear effect हो रहा है, ठीक है? And mixed type जिसमें both the things can be affected, both the fixation of stapes as well as involvement of the labyrinth can take place in the mixed variety. So what are the types of stapedial otosclerosis? This is an important question. It can be asked in MCQ also. This is the stapes suprastructure and this is the foot plate. What is this? Anybody? ये क्या है ये? Very good. क्या बोला? Stapedial tendon. Stapedial muscle का tendon है. That is attached on the head of the stapes. ठीक है? So ये जो दो प्रोसेस हैं, इसको स्टिरअप भी बोलते हैं ना, तो ये दो प्रोसेसेस हैं, they are called as the crura of stapes. ठीक, तो stapedial tendon always lies posteriorly. तो ये posterior crura, this is anterior crura, C-R-U-R-A, crura, ठीक, and this is the foot plate. All right. So अब ये anterior है, ये posterior है. So the most common variety of stapedial otosclerosis is and involving the anterior part. ठीक है, जो anterior part of the foot plate and anterior crura है, that is the most common variety. It is an important MCQ question. अब इस area को एक नाम दिया गया है, that is called as fistula antifenestrum. This is the most common place of origin of stapedial type of otosclerosis. So what are the other types? अब अगर ये posterior effect हो तो posterior वाला हो गया, ठीक है? This one. ठीक, if the entire foot plate along with the annular ligament जो है, जो margins जो हैं, that is affected, it is called as the what? Circumferential variety. एक और variety हो सकता है जिसमें only the foot plate सिर्फ affect होगा, annular ligament जो है वो affect नहीं होगा. That is called as the biscuit variety. ठीक है? And चौथा variety हो सकता है जिसमें ये जो pink है ये fully cover कर ले. That is called as the obliterative type. ठीक है? तो 5 varieties हो सकती हैं. One is anterior, posterior, circumferential, चौथा biscuit type जिसमें बस ऊपर में रहेगा यहाँ पे. This circumference will be clear.
एंड फिफ्थ वन इज द ऑब्लिटरेटिव, जिसमें पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है. So what are the causes? Exact causes not known, ठीक है. But it tends to follow some patterns that we know of, like hereditary pattern follow करता है, ठीक है. Around 50% of the cases has someone in the family having this disease, ठीक. दूसरा racial pattern follow करता है. It is more predominant in white races compared to the black race. Third, it is more found in pregnant females. Pregnancy के टाइम पे ऑटोस्क्लेरोसिस, क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन सेंटर्स होने चाहिए. हार्मोनल चेंजेस से एनकॉन्ड्रल लेयर जिसपे कार्टिलेज के आइलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है. प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये मिलता है. और कुछ सिंड्रोम हैं, जैसे वैंडर हीव सिंड्रोम एक होता है जिसमें ऑटोस्क्लेरोसिस मिलता है, ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू स्क्लेरा, इस पूरे ट्रायड को कहा जाता है वैंडर हीव सिंड्रोम, ठीक है. तो ये कुछ लाइक हेरिडेटरी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेफनेस इज देयर इन 50% ऑफ द केसेस. हाँ, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, which viral infection can lead to otosclerosis? Measles. So what are the clinical presentation? One is hearing loss, progressive deafness, which is painless and is insidious. There can be dizziness, tinnitus, vertigo, headache and pain in the ear. One important terminology that is seen in these patients is paracusis wilsii. That is defined as hearing better in noisy environment. ठीक है. So that is seen in otosclerosis also. Okay. So how do we diagnose this case? Taking a good history, physical examination. एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? इन ओटोस्कोपी वी विल सी, सपोज ओटोस्क्लेरोसिस एक्टिव है, मतलब इट इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है. दोज नाइडस ऑफ कार्टिलेज आइलेट्स आर एक्टिव. उस केस में क्या होता है, प्रोमोन्ट्री के ऊपर एक पिंकिश रेडिश ह्यू हो जाता है. तो सिंस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, आर पार हम थोड़ा सा देख सकते हैं बटर पेपर की तरह, तो दैट पिंकिश व्यू इज विजिबल, दैट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट साइन. ऑलराइट. सो दैट इज सीन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन. ट्यूनिंग फोक टेस्ट क्या मिलेगा इसमें? विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस? कॉन्डक्टिव. तो क्या मिलना चाहिए? रीनी टेस्ट, वेबर टेस्ट. ऑलराइट. इसको आप लोग घर पे जाके पढ़िएगा कि टेस्ट क्या है. ऑलरेडी क्लिनिक्स में पढ़ाया जा रहा है टेस्ट क्या है, और ऑटोस्क्लेरोसिस में चूंकि प्रीडोमिनेंटली कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिल रहा है तो कोलैबोरेटिव फाइंडिंग्स क्या होंगी, ठीक है. देयर इज वन मोर टेस्ट कॉल्ड एज टिम्पैनोमेट्री. हैव यू हर्ड अबाउट इट? Okay. So tympanometry is also beneficial in these cases. इसमें क्या है, क्या हो रहा है इसमें? स्टेपीज का फुट प्लेट जो है वो फिक्स हो जा रहा है, इट्स नॉट एबल टू मूव, ठीक है. तो इन टिम्पैनोमेट्री वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट वी आर सीइंग इज द स्टेपीडियल रिफ्लेक्स वी कैन सी. तो दैट स्टेपीडियल रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट. व्हाट इज स्टेपीडियल रिफ्लेक्स? व्हेन सम लाउड साउंड इज प्रोजेक्टेड टू द ईयर in excess of 70 to 80 decibels, there is, मैंने पढ़ाया था आपको during anatomy, there is a protective mechanism that prevents the damage of the inner ear. What protective mechanism? Stapedius muscle. वो उन vibrations को inner ear में transmit नहीं होने देता है. How does it prevent that? By making itself taut.
ठीक है, जो मसल था अगर वो टाइट हो जाए तो वाइब्रेशन अंदर जाएंगी नहीं जाएंगी। तो दिस इज हाउ द स्टेपिडियल रिफ्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड। बट तो वाया टिम्पेनोमेट्री वी कैन फाइंड वेदर द स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी स्टेपिस फुट प्लेट फिक्स्ड है तो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स नहीं आएगा। तो वाया टिम्पेनोमेट्री also we can find this condition. We can do CT scan, MRI. All right. So what is the management? Management is predominantly surgical management. What surgery? क्या है यहाँ पे पैथोलॉजी? स्टेपिस फिक्स हो गया है, उसका फुट प्लेट फिक्स हो गया है, तो उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? उसको फ्री कर देना, एज सिंपल एज दैट। उसको फ्री कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू प्रोसेसेस, टू मेथड्स। एक तो पूरा फुट प्लेट को आप हटा दीजिए, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज स्टेपिडेक्टमी। व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टेपिडेक्टमी। यू आर रिमूविंग द एंटायर फुट प्लेट। दूसरा क्या तरीका है कि आप फुट प्लेट को रहने दीजिए, जस्ट मेक अ ओपनिंग इन द फुट प्लेट जिसके थ्रू हम वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसमिट कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड एज स्टेपिडोटमी। ठीक है, दोनों केसेस में वी विल बी यूजिंग, अब तो स्टेपिस काम नहीं कर रहा है ना, तो इन आइदर केस वी विल बी यूजिंग अ प्रोस्थेसिस कॉल्ड एज पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन के वाया हम ऑसिकुलर चेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। स्टेपिस सुपरास्ट्रक्चर को हमने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इनकस और जो भी अगर हमने फेनेस्ट्रा बनाया है या ओपनिंग बनाया है स्टेपिस के फुट प्लेट पे, तो उसके थ्रू उस पिस्टन को इनर ईयर में जस्ट प्लेस कर दिया, तो अब हमारा ऑसिकुलर चेन कंटिन्यूटी मेंटेन है। ठीक है, तो द सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडोटमी along with piston placement. अब पिस्टन्स अलग अलग तरह के होते हैं। There can be Teflon pistons, there can be titanium based pistons, platinum based pistons, compound pistons जिसमें दोनों चीज़ें हैं, टेफ्लॉन भी है और तुम्हारा टाइटेनियम पार्ट भी है। ठीक है, तो दिस इज ब्रॉडली व्हाट प्रोसीजर इज डन टू इम्प्रूव दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है जो हम पूछेंगे आपसे कि आप ये सर्जरी किन कैंडिडेट्स में नहीं करोगे। पहला तो किन में करोगे, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो प्री रिक्विजिट क्या है, इंडिकेशन क्या है, इसमें कौन सा हियरिंग लॉस हो रहा है, कंडक्टिव। तो कितना कंडक्टिव हियरिंग लॉस पे हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, तो दैट इज मिनिमम ऑफ 30 डेसिबल हियरिंग लॉस। ठीक है, कितना, 30। अब 30 डेसिबल कैसे पता करेंगे, वी विल बी डूइंग इन एग्जामिनेशंस एक इन्वेस्टिगेशन होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उसके वाया हम पता करेंगे कितना डेसिबल ऑफ हियरिंग लॉस है। तो अगर मिनिमम 30 है, 30 से ऊपर है, तो ही इज अ कैंडिडेट। उसके साथ एक और प्री रिक्विजिट चाहिए कि उसका जो स्पीच समझने का जो कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर। ठीक है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, दैट शुड बी मोर देन 60%। देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज स्पीच ऑडियोमेट्री, उसके थ्रू हम स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर पता करते हैं। ठीक है, डिटेल्स यू नीड नॉट नो, बट ये नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, ये पहले भी आए हैं, आते रहेंगे। कितना स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर पे मतलब ओटोस्क्लेरोसिस के लिए सर्जरी इंडिकेटेड है, 40, 50, 60, 80 आया है ये। ठीक है, सो दैट इज 60% मिनिमम, द हायर इट इज द बेटर, बट मिनिमम 60%। ठीक है, तो ये दो प्री रिक्विजिट इंडिकेशन है। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे, कब नहीं करोगे। अगर
that ear is only hearing ear, then we'll be very careful. ठीक, अगर ओनली हियरिंग ईयर है सो क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इस सर्जरी के, ठीक है। तो एक तो वो हुआ, दूसरा अगर पेशेंट, जैसे मैंने बोला प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है इसकी एक्टिविटी, तो अगर प्रेगनेंसी के पीरियड में अवॉइड करते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर उस कान में अकम्पनीड विथ मीनियस डिजीज है तो, ठीक है, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव बेनिफिट टू द पेशेंट, ठीक है। चौथा, वेरी यंग पेशेंट्स, ठीक है। पांचवा, अगर जो पेशेंट है वो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर है तो उसका मिडिल ईयर का प्रेशर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विगरसली अगर मूव करेगा तो प्रेशर कहाँ ट्रांसमिट होगा, पिस्टन के थ्रू इनर ईयर में, ठीक है। सो उसमें नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर्स हुआ, या कोई अगर बहुत विगरस स्पोर्ट्स खेलता है, पिस्टन रखा है ना भाई, बहुत धक्का लगेगा तो क्या होगा, मिसप्लेस हो जाएगा, डिसलॉज हो जाएगा, उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। या कुछ वर्कर्स हैं जो बहुत हाइट पे काम करते हैं, अगेन प्रेशर जो है, प्रेशर की वजह से उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम जोज आर कॉन्ट्राइंडिकेशन और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी इन ओटोस्क्लेरोसिस। अच्छा, अब जिसमें सर्जरी नहीं करेंगे उसको क्या देंगे फिर? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वेरी गुड। जैसे कि एक सिम्टम तो है उसको, मान लो पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दिए, ठीक। और what I said, the idea of this class is not to make you expert. Everything is given in the books in a better format, but this interaction you will not get. So it is always recommended कि whatever will be taught in the morning, you should already have studied that the day before and come here and revise it with the teacher who is teaching. That is how good students study. Out of 150, 10% will be excellent in all the colleges. तो वो जो 10% हैं वो क्या करते हैं ऐसा कि वो एक्सेलेंट हो जाते हैं, अब बाकी के जो 135 है वो नहीं कर पा रहे हैं। इट्स नॉट कि आप बैठ के बस देख रहे हैं, यौन कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, ऐसे करने क्या होगा? आई एम नॉट टीचिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम टीचिंग फॉर यू, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट एवरीवन, आई एम टेलिंग टू एवरीवन। Whatever is being taught, you get to contact the teacher who will be taking the class, get to know the topic, better to study it one day in advance. उससे दो फायदे होंगे कि आप सब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहेंगे, और दूसरा जो क्वेरीज होंगी पढ़ने के बाद वो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। So coming back to the topic, symptomatic management, like he said. तो पेन वगैरह है उसके लिए तो हमने उसको पेन किलर वगैरह दे दिया, ठीक। और मेजर सिम्टम है हियरिंग लॉस, उसके लिए क्या करोगे अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो? वेरी गुड। सो वी विल बी प्रेस्क्राइबिंग व्हाट? हियरिंग एड, ठीक है। और अगर हमें एक्टिव डिजीज मिल रहा है, ठीक है, एक्टिव मतलब फाइंडिंग्स में दिख रहा है हमें वो रेडिश ह्यू दिख रहा है, और वी आर सस्पेक्टिंग कि द डिजीज माइट बी एक्टिवली प्रोग्रेसिंग, सो इन दैट केस वन मेडिसिन कॉल्ड एज सोडियम फ्लोराइड। क्या? सोडियम फ्लोराइड, दैट हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ द फोकाई,
ठीक है. सो वो आप दे सकते हैं. इट विल नॉट रिजल्ट इन हियरिंग इम्प्रूवमेंट बट और प्रोग्रेशन को स्टॉप कर सकता है. ठीक है. सो मेनली इफ द सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड देन वी गो फॉर व्हाट, हियरिंग एड. ठीक है. सो अब जैसा मैंने बोला, कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एब्रप्ट चेंज इन द मिडिल ईयर प्रेशर. जैसे हाइट पे अगर कोई काम कर रहा है, कोई बहुत नॉइजी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर है, इन सब केसेस में हम नहीं करते हैं सर्जरी. ठीक है. सो पोस्ट सर्जरी हम क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि ये सब नहीं करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आस्क क्वेश्चन इन द एग्जाम. सपोज यू आर आंसरिंग समथिंग अबाउट ऑटोस्क्लेरोसिस, विल गो इनटू द सर्जरी पार्ट. क्या करते हैं, तुमने बताया वो दोनों सर्जरी का नाम, वेरी गुड. अच्छा बताओ अब कि सर्जरी हम तुमने कर दिया, आप पेशेंट को क्या बोलोगे. सो ऑल दीज things whatever I am discussing in a manner that we are expecting you to answer in the exam. बुक में 5 पेज में ये है चैप्टर, 5 पेज तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना. ठीक, करेक्ट. तो that is the benefit you will get if you study it in advance and come here knowing the background कि कहाँ कहाँ पे आपको एम्फेसिस करना है. ठीक है. तो क्या हम उसको बोलेंगे पोस्ट ऑफ एडवाइस में ये सारी चीज़ें, जैसे ज़ोर से नाक नहीं साफ करना है, जो मैंने बताया वो सब काम नहीं करने हैं. जहाँ पे प्रेशर रैपिडली चेंज हो रहा है. ठीक. ओके. सो वन मोर पॉइंट दैट आई मिस्ड इज वन फाइंडिंग इन प्योर टोन ऑडियोमेट्री. ठीक है. Very famous finding that is called as Cahart's notch. Cahart's notch. ठीक है. So what is it? Anybody? Hearing loss type is conductive predominantly. ठीक है. Conductive का क्या माने होता है कि there will be प्योर टोन ऑडियोमेट्री में 2 ग्राफ्स, 2 लाइंस होती हैं, 2 ट्रेसिंग्स होती हैं. एक होता है बोन कंडक्शन का ट्रेसिंग, एक होता है एयर कंडक्शन का ट्रेसिंग. दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं ए बी. ए फॉर एयर कंडक्शन, बी फॉर बोन कंडक्शन. ए बी गैप. ठीक है. अगर ये गैप जो मैंने बोला 30 डेसिबल से ऊपर है तो दैट इज अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी. लेकिन इस ए बी गैप में एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है कॉल्ड एज द Cahart's notch. उसमें क्या होता है कि जो बोन कंडक्शन का ट्रेसिंग है दैट एब्रप्टली फॉल्स एट 2000 हर्ट्ज. ठीक है. तो दैट नॉच लाइक फॉल इज कॉल्ड एज द Cahart's notch. कहाँ पे होता है, कितने फ्रीक्वेंसी पे होता है, 2000 हर्ट्ज पे होता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो MCQ क्वेश्चन. और नॉर्मली सक्सेसफुल सर्जरी के बाद Cahart's notch बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है. ठीक है. सो अगेन अ क्विक रिकैप. ये डिजीज क्या है, हार्डनिंग. इट इज हार्डनिंग और कैल्सिफिकेशन इन द स्टेपिस फुट प्लेट और द इनर ईयर. ठीक है. जिसके वजह से वी गेट हियरिंग लॉस, प्रिडोमिनेंटली कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस. ठीक है. कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है, वी डिस्कस्ड. ठीक है. व्हाट आर द फाइंडिंग्स विल बी गेटिंग इन द डिफरेंट टेस्ट. प्योर टोन ऑडियोमेट्री में क्या मिलेगा, टिम्पैनोमेट्री में क्या मिलेगा. ठीक है. और तुम्हारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसमें क्या मिलेगा, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हाउ विल वी गो अबाउट द मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें 2 तरह के सर्जरीज हम करते हैं, दैट वी डिस्कस्ड. ठीक. और जिसमें हम सर्जरी नहीं करेंगे उनमें जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा दैट वी डिस्कस्ड. इंडिकेशंस क्या है सर्जरी के, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एंड पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे दैट वी डिस्कस्ड. ऑलराइट. सो
go to your rooms today and just go through the chapter. It is a very small topic, but it is very, very important topic.